आज सुबह मैं एक मंदिर में रोज़ जाता हूँ, अभिषेक करता हूँ। मेरी कार्यशैली है, जन्मदिन पे है खास, तो हिंदू त्योहार है, मैं मंदिर जाता हूँ डेली, अभिषेक शिव का करता हूँ। तो आज एक बुजुर्ग अंकल ने एक लिखा, बहुत ही आप देखना सुविचार, मैं गुजराती में बोलता हूँ। પાણીનું એક ટીપું ગરમ તાવડામાં પડે એટલે નષ્ટ થાય છે. કમળના પાંદડા પર પડે તો મોતીની જેવું ચમકે. છીપ પર પડે પાણીનું ટીપું તો મોતી બને. ટીપું એ જ છે, ફરક ખાલી ક્યાં પડે છે એના પર છે. પછી બીજું એક સ્લોગન હતું, સમજણ વિનાનું દેવું નકામ, નીતિ વગર લેવું નકામ, નીતિ વગર લેવાય નહીં કોઈ પૈસો, અણસમજે નહીં કહેવું નકામ, કોઈ પાગલ કે અણસમજ માણસ હોય એને સલાહ આપો, અસર ના થાય. કોઈના ઘરે વધુ પડતું પડી રહેવું નકામું, કામ વિના જાવું નકામું, ભૂખ વિનાનું ખાવું નકામું, નીર વગર નાવું નકામું, ગળા વિના ગાવું બોલવું નકામું, ગળું ના હોય તો બેસી જાય તો બોલતા નથી, તે રીતે ના બોલાય ત્યાં જવું નકામું. પછી એવું છે, પર સુખે સુખી તે શ્રીમંત, પર સુખે દુઃખી તે દ્વેષી કહેવાય. દ્વેષી એટલે ઈર્ષાળુ. પર દુઃખે સુખી એ પાપી, અને પર દુઃખે દુઃખી અને સંત કહે છે. પછી એવું હતું કે વિઘ્ન વિના સફળતા મળે અને વિજય કહેવાય છે. વિઘ્નની સાથે સફળતા એટલે હિસ્ટરી, ઇતિહાસ રચો. આપણે એક ઇતિહાસ રચો કે પાપ થાય એવું કમાવું નહીં, માદા પડાય એવું ખાવું નહીં, દેવું થાય એવું ખર્ચવું નહીં, ને લડાઈ થાય એવું બોલવું નહીં. એટલે વાણી પર સંયમ રાખો. તો એમ કહેવાય છે કે થિંક બિફોર સ્પીક બાય લિપ, એટલે કોઈ પણ વાક્ય બોલતા પહેલાં વિચારો, 100 વાર વિચાર કરો એનાથી શું ઇમ્પેક્ટ પડશે, અસર. અમે પત્રકાર એટલે કહીએ છીએ. તો આ બધા સ્લોગનો જીવનમાં ઉતારવા જેવા છે. હવે કાલે મારે વાત થઈ હતી એના પર જ જોઉં છું. એક વસ્તુ છે, ભારતમાં મેં કીધું કે જ્યોતિષ તરીકે, પત્રકાર તરીકે, સૂર્ય ધન રાશિમાં ધનારક શરૂ થયા. ધનારક એટલે 1 મહિનો કમૂરતા રહે, ઉત્તરાયણ, વાસી ઉત્તરાયણ સુધી. તો મેં કીધું ભારત પર સંકટે આવ્યું કે કેરળ રાજ્યમાં એમિક્રોનનો વંશજ એક જેન 1 કોરોના વાયરસ આવ્યો છે. હવે તકલીફ શું છે કે લોકડાઉન થયું હતું, ફરીથી લોકોએ ચેતવા જેવું, પર્યાવરણ, પ્રકૃતિ, માસ્ક પહેરવું પડશે. એમાં શું લક્ષણ આવે છે કે તાવ, કોઈ બુખાર आता है, किसी को खांसना होता है सतत, નાક બંધ થઈ જવું, ઝાડા ઉલટી અને વોમિટ થાય, માથાનો દુખાવો છે. એટલે આ વાયરસ ભયંકર છે, કેરળમાં પ્રવેશ થયો છે. હવે આપ લોકો સાચવજો. અત્યારે મોદી સાહેબ સુરતમાં મોદી સાહેબ વર્ચ્યુઅલ ડાયમંડ બુર્સનું લોકાર્પણ કરી રહ્યા છે. મારે શું પ્રશ્ન હતો તમે જાણો કે હા હા ગાઝામાં એર સ્ટ્રાઇક કરી નેતન્યાહુએ, ઇઝરાયલ પીએમએ, અને હજુ યુદ્ધ વિરામ બાદ 50ના મોત થયા છે. તો ચીન રશિયામાં પુતિન, જિનપિંગ એ લોકો સરમુખ તૈયાર છે. જે બી સારો નેતા, બૌદ્ધિક નેતા ઊભો થાય ને, જેલમાં પૂરીને મારી નખાવે. પ્રમુખશાહી છે, જ્યારે આપણે લોકશાહી છે. હું કોઈની ફેવર કરતો નથી. 2 ટર્મ જીત્યા, हाल જ 3 राज्य में जीत्यु भाजप, 3 राज्य में भाजप जीत गया और संसद पे हल्ला हुआ. माने मोदी लोकप्रिय ये बताता है. तो अभी हैट्रिक ना मारे, अभी 2024 में इलेक्शंस आएगा. तो ये सब प्लान में 6 लड़के शामिल थे. मैंने कल बताया, मुझे दुख होता है कि स्टूडेंट, छात्र कहाँ जा रहे हैं. भगत सिंह के विचार पे. तब वास्को दी गामा पोर्टुगल से इधर आया, अमेरिका खंड की शोध की. वहाँ पे इतिहास में मुगल साम्राज्य राज करा था. मैंने बोला मंगल पांडे मार्टियर बना, तब हिंदू मुस्लिम एक एक के लड़े थे. आज़ादी पहले इतना कट्टर नहीं था मुस्लिम, नहीं कट्टर हिंदूवाद था. अरे वहाँ पे अंग्रेज लोग राइफल के डुक्कर की चर्बी होता है ऐसा कुछ करके उसको बोले राइफल फोड़ने का बोलते. मंगल पांडे ने मना किया, मुसलमान सैनिकों ने मना किया, अंग्रेज के सामने फाइट दी और मंगल पांडे मार्टियर बना. भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका था. तो क्या था कि अंग्रेज से बहुत ही एग्जॉस्ट हो गए थे इंडियन. यहाँ गरीबी थी भारत में और अंग्रेज सरमुखत्यारशाही कर रहे थे. तो भगत सिंह ने क्रांतिकारी बन गए. तो समझो भगत सिंह की विचारधारा क्या है कि हिंदुत्व के लिए, देश के लिए था. वहाँ पे अंग्रेज शासन था. तो मीर कासम नवाब था. बहुत सारे लोग मुसलमान फूट गए वहाँ पे. और अमित चंद जयचंद, बोलते अमित चंद जयचंद जैसे देश के गद्दार लोग थे. तो इसकी वजह से देश को नुकसान हुआ. जो
कोठियाँ होती थी फ्रांस को कोठी स्थापने के लिए, वो लोगों ने रास्ता बता दिया। हिंदुस्तान से गद्दारी की अमित चंद जयचंद। तो इस प्रकार से थोड़ा भेदभाव होने लगा। हिंदू मुस्लिम थोड़ा क्रिएशन अंग्रेजों ने पैदा किया। अंग्रेज स्मार्ट थे, लोग डिवाइड रूल में मानते थे। माने पहले हिंदू मुस्लिम एक थे, उनको इस तरह से मंगल पांडे की घटना देखी, सबको डिवाइड कर दिया, यानी झगड़ा हो और हम राज करें हिंदुस्तान पे। मुगल सम्राट लास्ट बहादुर शाह जफर था दिल्ली में, तो क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया, और वहाँ पे पिता को अकबर बाबर कहीं भी देखो, पुत्र ने पिता के साथ विद्रोह किया और सत्ता पे बैठ गया। मुगल साम्राज्य में ये था, इस्लाम साम्राज्य में पुत्र ने पिता का कत्ल करा या पिता ने पुत्र का कत्ल, तो हिंदू संस्कृति में कम देखने को मिले। सर सत्ता के लिए ऐसे ऐसे प्रपंच किए गए, जबकि 19वीं सदी चल रही। महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, आज़ादी के लिए लड़े, उनके साथ भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, काफ़ी कुछ। इतना भेदभाव नहीं था। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना की, और मुस्लिम लीग के प्रमुख को जिन्ना को बनाया गया, जिन्होंने पाकिस्तान का निर्माता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना पहले गांधी जी के साथ रहे, फिर गद्दारी की, और जहाँ उन्होंने एक भेदभाव पैदा किया कि हिंदू प्रांत है, मुस्लिम प्रांत को भी अलग इलेक्शन के लिए वो दो सीट्स दे, और हम मुस्लिम लीग के साथ रहेंगे। और जब 1942 में हिंद छोड़ो मूवमेंट हुआ, तब मुसलमान को अलग कर दिया वो लोगों ने, मोहम्मद अली जिन्ना की विचारधारा ने। यानी पहले हिंदू मुस्लिम साथ में अंग्रेज को सामने फाइट करते थे, तभी भेदभाव हो गया, हिंदू मुस्लिम अलग पड़ गए। आप जानते हो 14 अगस्त को पाकिस्तान की रचना हुई, फिर भारत आज़ाद हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, जो सरदार पटेल ने बहुत ही बेहतरीन काम किया गुरु। अगर लोग बोल रहे हैं कि सरदार पटेल प्राइम मिनिस्टर होते इंडिया का नक्शा और होता, सही बात है। उन्होंने हैदराबाद के नवाब सबको नो क्या होता है कि सालियाना बंद कर दिया, और निज़ाम को भी बहुत कुशाग्र बुद्धि से सरदार पटेल जी ने हटा दिया। ने मैं मानता हूँ कि सरदार पटेल होते तो पूरा अखंड हिंदुस्तान होता। प्राइम मिनिस्टर बन गए, गांधी जी को सपोर्ट, गांधी जी ने सपोर्ट किया जवाहरलाल नेहरू को, तो सरदार पटेल जी को अन्याय हुआ हुआ। अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो अखंड हिंदुस्तान होता, जो आज नहीं है। तो सरदार पटेल जी ने देश के लिए काफ़ी कुछ किया है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर होते, और तो क्या हुआ कि 6 लड़कों की बात करेंगे जो कैरियर पे फाचर मार के, जिसमें से एक महेश कुमावत है, वो भी एक मजदूर जैसा है, उसको पकड़ लिया सागर शर्मा है, मनोरंजन। बी प्लान में क्या था सुनो, संसद में जाके आत्मविलोपन करना, या कुछ चिट्ठी चबर की फेंकना, या क्या होते हैं उसको बोलते हैं ना, चौपानिया चौपानिया फेंकना। तो 7 कैन लेके आए थे, स्मोकिंग कैन होता है, स्मोक कैन। इतना बड़ा प्लान बनाया था कि मोदी सरकार को बदनाम किया जाए, यार यहाँ घुस बैठी हुई। तो वो मैं नहीं कहता, मीडिया कहता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, मीडिया में सब आ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसद थे, ममता बनर्जी के, वो लोगों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए सिग्नल ऐप यूज़ किया, गूगल सर्च से सिग्नल ऐप, और 4 लोगों के मोबाइल ले लिए, और दोनों सब भागने वाले 6 लोग। नीलम भी थी, एक लड़की है हरियाणा। ये देश में अराजकता फैलाएंगे, जैसे मैंने बताया पहले आज़ादी पहले थे, ऐसी घटना लगातार हुई थी। फिर आज़ादी के बाद 21 साल पहले अफजल गुरु ने संसद पे हमला किया, 9 लोग मारे गए, 5 आतंकी ठार हुए। यहाँ कुछ पुलिस कर्म की भी चूक थी दिल्ली के, तो उनको सस्पेंड किया गया, और 4 लोगों की 6 की अरेस्ट किया, और यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में रजू किया, 15 दिन का रिमांड मिली। तो इतने सारे सिक्योरिटी कमांड है, फिर भी घुस जाना, यानी इसराइल में मोसाद के साथ हुआ था कि वो मोसाद इतने सारे आरोप, गुजरात जैसा है इसराइल, एक गुजरात जैसा है, छोटा सा प्रदेश, वो लोग विकसित हुए, वो लोग गरीबी से आगे आए, फिर अमेरिका में नौकरी ली, इसराइल का प्रभुत्व बनाया। तो आज नेतन्याहू का, हमारे मोदी साहब की तरह, मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा हूँ, नेतन्याहू का भी वहाँ विरोध है कि आप क्यों आक्रमण करें। फिर भी गाजा ने एयर स्ट्राइक किया, युद्ध विरांगे 50 के मौत, क्योंकि वो जानते हैं आतंकी को कैसे सबक सिखाना है। आतंकियों को अगर आप शांति से बोलेंगे भैया आप आतंक छोड़ दो ना, क्यों ऐसा कर दो भारत में इसराइल, वो लोग नहीं मानेंगे। तो इसराइल का एक्शंस बहुत करेक्ट है, यानी ये तो चलो हिंदुस्तानी लड़के थे तो उन्हें ना समझ में किया है। वहाँ अफजल गुरु और कसाब की बात नहीं, उनको फांसी दी गई, पाकिस्तान से भेजे गए। देखने जैसा है कि चलो बेरोजगारी है, हम मानते हैं, हम सरकार को पत्र लिखे, हम इकट्ठे होकर आवेदन करें कि मोदी जी ये है, आप एक्शंस लो।
खेडूतों की समस्या है तो मोदी जी कर रहे हैं, कुछ कर रहे, मणिपुर हिंसा है। इसका मतलब एक ऐसा नहीं कि संकट में घुस के पूरे देश का ध्यान वहाँ कन्वर्ट करे और स्प्रे लगाए ऐसे, जिसको क्या फॉग स्प्रे होता है, कलर गैस होता है, कलर गैस। कितना बड़ा प्लान होगा, हम आप तो जा ही नहीं सकते सर, मेरी भी औकात नहीं है। मेरा आधार कार्ड मांगेंगे, विजिटिंग कार्ड मांगेंगे, हम पत्रकार है फिर भी हमारा सब डॉक्यूमेंट्स मांगते, पास लेना पड़ता है संसद में। ये 6 लड़कों की कमाल देखो, विद्यार्थी यार, पता नहीं इतना डेयरिंग वाला काम कर दिया, कुछ पता नहीं चला। खैर बात को तो जाने दो। तो मोदी साहब तो अभी सूरत में वर्चुअल डायमंड बुर्स का लोकार्पण कर रहे हैं। यानी सिग्नल ऐप से खतरनाक काम किया गया। कई ऐप्स होती है, कई, मैं बोलता हूँ कि सोशल मीडिया में हमारा यूट्यूब भी है। आप बहुत जागरूक लो। साइबर फ्रॉड होते हैं, आपको बोले ओटीपी दे देते, पैसा इतना आपके खाते में जमा होते, तो आप गुनहगार बनते हैं। कोई भी जमा कर देता है, आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है साइबर फ्रॉड से। साइबर सेल है, साइबर पुलिस, ऐसे ऐसी घटनाएं, वारदात वारदात रंग लेती है, पता नहीं चलता, आपके खाते में से पैसा चला जाए। गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग, सी लालत है। महादेव ऐप, मैंने क्या बोला, छत्तीसगढ़ में कुकरमुख की सजा है, पैर पे कुल्हाड़ा मारना कांग्रेस का। महादेव ऐप में कांग्रेस के एक्स सीएम थे, ऐसा मीडिया में आया, तो सरकार चली गई। यानी बैठे बैठे जुआ, ड्रग्स, युवान धन को कहाँ ले जा रहे, मुफ्त में पैसा कमाओ ऐप द्वारा। फेसबुक पे कोई फ्रॉड होता है, आइडेंटिटी क्लियर नहीं होती, फ्रॉड लोग भी घुस जाते हैं नकली नाम लेके, और लड़कियों के साथ चीटिंग बहुत सारा होता है। आप देख रहे हो, न्यूज़ में आ रहा है। मेरा खुद का कुछ नहीं बोला, मेरा खुद का नहीं बोला, मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, तो इसमें सब न्यूज़ आते हैं, ये आपको बोल रहा हूँ। ऐसे ऐसी घटनाएं होती है। तो गाज़ा ने पे पट्टी पे अभी भी एयर स्ट्राइक चालू है। फिर देखो, अगर इंडिया होता तो मानवाधिकार वाले आ जाते, अमेरिका वाले आ जाते, चीन वाले आ जाते, बोले आप क्यों हल्ला कर रहे हो आतंकियों पे। जहाँ इसराइल को कोई पूछता नहीं है, इसराइल को कोई पूछता नहीं, वो सब चाहे एयर स्ट्राइक कर दे। डोमेन सिस्टम है, सुरंग है, सब कुछ है। सेल्फ डिफेंस में इसराइल नंबर 1 है वर्ल्ड में। अब मोसाद का फुट जाना बात अलग है, जासूसी संस्था भी फुट जाती। तो यहाँ ऐसा ही हुआ संसद में। दूसरी बात है कि हेल्थ के लिए केयर रखना है सच में। मीन धनराशि में सूर्य कहा ना, 1 महीना भारत के लिए खतरनाक है। यहाँ पे ओमिक्रॉन वायरस कोरोना ने केरल में एंट्री कर लिया, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, चेन 1। तो अब सबको हेल्थ में भी केयर रखनी है। सो हमारी ये प्रार्थना होती है स्कूल में। मैंने सुबह में बोला, ओम तत्सत नारायण तो पुरुषोत्तम गुरु तो सिद्ध बुद्ध तो स्कंद विनायक सही तब। अरे विद्यार्थी को सिखा जाता था कि सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलो, कभी ऐसी हरकत नहीं करो पढ़ाई कैसी है जिसको आपके फैमिली को तकलीफ। आपका पता नहीं होता, माँ बाप मिडिल क्लास होते, बच्चा कहाँ जाता है, पैसा बनने के चक्कर में, हीरो बनने के चक्कर में कहाँ चले जाए, माँ बाप को पता नहीं होता, माँ बाप पछताते हैं। तो कैसा होता है कि स्टूडेंट लाइफ में ये सब नहीं होना चाहिए। कॉलेज कैंपस, स्कूल कैंपस, सरकार को स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए कुछ, कैसे तत्वों का प्रवेश नहीं होना चाहिए जिससे ड्रग्स सप्लाई होता है, ये होता है फलाना, कप सिरप आती है, कुछ बहुत ही ऐसी ऐसी चीज़ें कि हिंदुस्तानी युवाओं को रोजगारी से गुमराह करती है, बेरोजगार बनाती है। ये कारण बेरोजगारी, मोदी साहब कुछ कर नहीं है ऐसा नहीं है, बेरोजगारी का कारण हम खुद क्रिएट करते हैं। हाँ, खेडूतों की मदद करते हैं, मोदी साहब खाते में भी पैसा आ जाता है उनके, जो भी फसल उगाते हैं उसको सब मोदी साहब। मणिपुर में हिंसा, ये बात ही अलग है, उससे अपाट रहो। मतलब क्या होता है कि ऐसे ऐसे बहाने बनाते कि मोदी को गिराओ, अमित शाह को गिराओ, गुजरात के, मैं गुजराती हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, सब जानते हैं कि ये सब स्ट्रैटेजी बनाई गई है, जहाँ पे इस्लामी आतंक से लेके कहीं कुछ संस्थाएं, कहीं कुछ पक्ष भी ऐसे लोगों को समर्थन कर रहे हैं। गलत घटना है, मैं तो मुंह पे कहूँगा, सच्चा हूँ तो। मेरा खुद का नहीं कहता, मैं अखबार पढ़ के ये सब बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि अखबार में ये सब आता है, न्यूज़ सोशल मीडिया पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल पे आता है, मेरी चैनल है, और मैं आपको जागृत कर रहा हूँ कि हिंदुत्व में जागृति होना जरूरी है, वरना हम गुलाम हो जाएंगे। 1947 के पहले मैं बताया यही घटना हुई। अंग्रेज जो जान रहे थे, अंग्रेज बहुत वाइस थे, जैसे उन्होंने मीर कासम नवाब था, ये सब, और कोठी स्थापने के लिए भारतीयों को फोड़ दिया। अमित चंद जयचंद जैसे, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई भी हुई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा, मैं मर जाऊंगी अपनी झांसी, वैसे वीरांगना हुई महाराणा प्रताप हुए। सो ऐसा नहीं बनेगे। 1947 बाद आज कितने साल हो गए, 70-80 साल हो गए, भारत फिर से गुलामा की गर्ता में आए, क्योंकि हमें हमारा सांस्कृतिक पहचान, हमें हमारा इतिहास नहीं भूलना है।
जिसको बीतना आता है उसमें लिखा स्लोगन में बीतना आता है, फिर भी आगे बढ़ते हैं, उसको हिस्ट्री बोलते हैं, इतिहास। तो भारत देश में कई अत्याचार हुए, किसानों की जमीन हड़प ली अंग्रेजों ने, कई किसानों को लाठीचार्ज किया, बहुत सारी घटनाएं हुई, फिर भी हमने सहन किया, तो आज इंडिया नंबर 1 है, इकोनॉमी 4th नंबर पे, मोदी साहब का शासन चल रहा है। सो बेरोजगारी कहाँ है, कि बेरोजगारी कहाँ है वो ढूंढो, और रोजगारी ढूंढने का ट्राई, काफ़ी कुछ ऐप से रोजगारी मिलती है, अच्छी ऐप्स भी होती है, कई ऐप्स फालतू होती है, उसको यूज़ मत करो। सो ये सब चर्चा के लिए संसद में जाके हल्ला करना बात भी नहीं है। आप चर्चा करो, डिस्कशन करो, युवा यूथ बनाओ युवाओं का। मैं इसमें नहीं जाऊँ हिंदू मुस्लिम कौन है था, अफजल गुरु को फांसी मिल गई, कसाब को कर्मों की सजा, सबको कर्म का सजा मुकर्रर है। इसराइल भी कर्मों की सजा दे रहा है गाजा पट्टी पे हमला के लिए। सो सागर शर्मा, महेश कुमावत को अरेस्ट कर दिया, आत्मविलोपन की योजना कितनी खतरनाक, बी प्लान था खतरनाक, संसद में घुस के चौपानियाँ फेंकना, 7 जैसा कैन लाए थे ये युवान, कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट है कोई है, तो अपनी कैरियर बर्बाद मत करो युवान, से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, जो भी होना है वो तो ओके रहेगा। ओके, और आपको पास में ज्योतिष हूँ इसलिए कि धनराशि में सूर्य का आना खतरनाक है, 1 महीना देश के लिए भी, गुजरात के लिए भी। हमको कोरोना से अलर्ट रहना है, हर एक को मास्क पहनना है, डिस्टेंस 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, ऐसा स्लोगन करो, 2 गज की दूरी मास्क। ऐसा ना इससे पहले हम हर एक लोग घर से बाहर निकले मास्क पहने, पहले तो सेफ्टी रखे, हाथ को स्प्रे करे, धोए, घर से आए हाथ पैर धोए, फिर खाना खाए, जम से चले जाएंगे, और गर्म पानी पिए, हॉट वाटर को ज़्यादा यूज़ कीजिए, तभी ये कोरोना वायरस से अभी छुटकारा नहीं मिला, मिलेगा सब। तो मैं कहता हूँ चीन रसिया की जैसा अगर हो जाए हमारे यहाँ, आप स्मार्ट लोग हैं, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, चीन रसिया की तरफ भारत में भी हो जाए तो थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा सिस्टम पे। इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है 24। आप लोग समझ गए, थैंक यू। सिग्नल ऐप इतना खतरनाक है, बोलो। तो मैंने बोला कि सभी राशियों के लिए अच्छा है, जैसे कुछ राशि के लिए बुरा भी है, मैं देता रहूँगा। धन में सूर्य का आना, और मकर राशि में जाएंगे, फिर 15 जनवरी के बाद ठीक हालत होगी। वंदे मातरम, भारत माता की जय, ओम नमः शिवाय। मैं हमेशा शिव पूजा से काम शुरू करता हूँ, ये स्लोगन आपको बता, हमारी बाल सभा होती स्कूल में, वहाँ यही सिखाते थे, हम मिडिल क्लास बच्चे थे, यहाँ संस्कार का माध्यम होता है। आपको विद्यार्थी अच्छा बनना है, आपको अच्छे विद्यार्थी बनेंगे, अच्छे एम्प्लॉय बनोगे, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब कहीं भी जाए, आप अच्छे विद्यार्थी हो, अच्छे स्कोरिंग करोगे, अच्छे एम्प्लॉय बनो, अच्छे एम्प्लॉय बनेंगे, अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, देश के विकास में योगदान, देश के विकास में योगदान करेंगे, देश आगे बढ़ेगा, यहाँ बेरोजगारी खत्म होगी। यानी कल्चर है ये सब, कल्चर तहजीब बोलते हैं उसको, तहजीब, तो आपको सीखना है ये सब। क्योंकि मैं मेरा खुद का कुछ नहीं बोला हूँ, ये सब अखबारी पढ़ाई मेरा है, मेरा अभ्यास है, मेरी न्यूज़ चैनल में देता हूँ। चिंताजनक विषय के युवा कहाँ जा रहे हैं, इस देश के युवा धन, जहाँ भगत सिंह थे, स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने देश का आदर्श देखा था, देश की भलाई देखी, तो युवाओं को और सरकार भी को भी सजाग रहना है, कॉलेज कैंपस में ऐसी कुछ एक्टिविटी ना हो, स्कूल कैंपस में ताकि विद्यार्थी बच पाए, किसी के गुमराह होने से गुमराह नहीं हो। मेरे दिल की फीलिंग्स है, मैं मिडिल क्लास, मैं भी पढ़ा था, मेरे पास पैसा नहीं था, अच्छा स्कोरिंग किया, सेकंड क्लास नहीं, फेल भी हुआ हूँ ऐसा नहीं है, फिर पास हो गए, मेहनत किया था, और मेरा जर्नलिज्म में 75% है। मैंने कितना रिसर्च किया होगा जर्नलिज्म, आप सोचो 75 डिस्टिंक्शन, मैंने मेहनत किया था जर्नलिज्म के लिए, तभी आज पत्रकार हूँ। सिंगिंग के लिए मेहनत को, मेरा मैंने क्या बोला, गला नहीं अच्छा है तो स्लोगन गाना नहीं चाहिए, मेरा गला भी बैठ जाए, तब भी मैं बोलता रहे, तो आपके हित के लिए बोलता हूँ, भगवान बुलाता है आपके हित के लिए। ये सब आपको ध्यान रखना है। ओके, और एस्ट्रोलॉजी से गाइड कर दो, तो न्यूज़ को मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, व्यूअर्स टाइम बढ़ाए, मोनेटाइज हो, यूट्यूब मुझे सपोर्ट करे, आप मुझे सपोर्ट करो, कुछ इनकम शुरू हो, मेरा नंबर भी आप डिस्कस भी कर सकते हैं। तो आपकी चैनल आपको आगे बढ़ना है, ज्ञान गंगा, ये ज्ञान गंगा है, भगवान देता है मुझे, वो देता हूँ, इसलिए ज्ञान गंगा, भगवान आपके लिए देता है, मैं आपको देता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब मदद करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। बस एक संकल्प ले, अच्छा भारत बनाए। हम युवान है, बेरोजगार है, तो कुछ भगवान का नाम दे, कुछ एक्टिविटी किए, 2 ही काम होता है, एक भगवान का नाम लो, रोजगारी आएगी, पैसा आएगा, दूसरा अच्छी एक्टिविटी करो, क्रिएटिव,
सब सॉल्यूशंस आएगा। इतने लिए आक्रामक बनने की ज़रूरत नहीं। मेरे युवाओं को यही अपील है। तो आप ये देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। प्रशांत व्यास न्यूज़ क्या आपके हित की बात करता हूँ, मुझे कुछ ऐसा नहीं, मेरी कैरियर तो भगवान ने बनाई है अच्छी। हाँ, डोनेशन के लिए बोलता हूँ क्योंकि ज़रूरत होती है। आपको देना है दे सकते हैं, नहीं देना नहीं। सब्सक्राइब करना है कर सकते हैं, नहीं करना है नहीं करो, पर आपके हित में बात करूँगा ये, कि मेरी कर्तव्य है कि आपके हित में चैनल है। न्यूज़ लंबा चलेगा, आप लोगों का सपोर्ट से आपके चैनल, समझिएगा ये बात। हम विद्यार्थी काल में कष्ट उठाए, बहुत सारे कष्ट चले, फिर डिस्टिंक्शन मार्क आए मेरे 75% से। मैं बहुत हैप्पी था जर्नलिज्म में। मुझे लगता था कि जर्नलिज्म में मैं आसमान ही छूऊंगा। कुछ सपोर्ट मिला नहीं मिला, आगे बढ़ती रही, तरक्की होती रही। शिव शंकर की कृपा है, मेरे महादेव इष्ट देव है। सो शिव शंकर की कृपा से चैनल चलती। आप लोगों को ज्ञान दे दो, इसलिए ज्ञान गंगा। इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, मोनेटाइज में मदद कीजिए। यूट्यूब को लगे अच्छा चैनल है, वो भी होना चाहिए क्वालिटी वाला। और मेरे से बात कर सकते, नंबर है, तो कभी कुछ आप व्हाट्सएप से मैसेज करिए, जब आपसे डिस्कस करूँगा। ये न्यूज़ एंड व्यूज़ है, नाम जानबूझ के रखा गया, न्यूज़ एंड व्यूज़। थैंक यू। ये सब बातें मैं जो आपको बताया उसको ध्यान रखा है। धन में राशि में सूर्य ग्रह राज जा रहा है, 1 महीना के लिए मुहूर्त पाबंदी है, कुछ अच्छा काम नहीं करने, धार्मिक कुछ, फिर हो जाएगा मकर संक्रांति बाद। और इसराइल की तरह हम सीख ले। गुजरात हमारा गुजरात है, सरदार पटेल का गुजरात है, मोदी जी का गुजरात। इतना छोटा गुजरात, इतना छोटा इसराइल, पर कहाँ पहुँच गया इसराइल, कहाँ पहुँच गए आप देखो आज। बल्कि डिफेंस सिस्टम पूरी है इसराइल के पास, वो हम भारत डेवलप करें मोदी साहब। और तो बात होती रहेगी, और कोरोना वेरिएंट से बचे। ओके, तो हमको सच्चाई के सामने लड़ना है, तो एकता चाहिए, निडरता चाहिए। तो सब भारतीय हिंदुस्तानी संगठित होके, सब भारतीय हिंदुस्तानी संगठित होके, जो सच्चाई नहीं है, जो गलत बात है, उसके सामने प्रोटोकॉल ही लड़ना है। प्रोटोकॉल इस तरह से नहीं लड़ा जाता संसद में घुस के, या प्रोटोकॉल फाइट देनी है। सुनेंगे, सरकार सुनेंगे, क्योंकि सरकार भी हमारी है। आज सरकार हमारी है। जय श्री राम। राम मंदिर भी बन रहा है। तो आप सबको धन्यवाद। तो मेरा मैक्सिमम न्यूज़ देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, मोनेटाइज में मदद कीजिए, व्यूअर्स और बढ़ाए। यूट्यूब को लगे अच्छा चैनल, ये ज्ञान गंगा है। भारत माता की जय। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम। बस आज इतना ही कहूँगा, और आप सबको शुभेच्छाएं देशवासियों। थैंक यू।